Hi guys, hi dear students. Today is the Holi. So at first, I want to wish a happy Holi to all of you. This Holi bring a happy and all thing which you want in your life. So again, wishes happy new Holi, and maybe all of you enjoy happy Holi with colors and gujia and all the sweets. So all of you enjoy, and when you eat anything, then remember me. I am also want to eat this. I am also enjoying. So all of you enjoy this colorful Holi, but always you remember that there are some colors are dangerous to your skin. So care that, but enjoy that because this is a colorful life. So all of you enjoy this colorful Holi, but always take care your health also, because there are some wrong materials effects on your health. And also always you remember that there are some persons we who want to defeat you, they also revenge to you. So always you care that, and you enjoy carefully. Okay, so students, today we want to discuss the chapter electrochemistry, and this is the lecture 4. Students, today we discuss that the Kohlrausch law of independent migration. This is the lecture 4 of the electrochemistry. So today we students discuss that the Kohlrausch law of independent migration of ions. एक्चुअली स्टूडेंट्स कोलराउस लॉ जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है. तो एक्चुअली इट स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ individual contribution of the anion and cation of the electrolytes. Listen once again. It states that the limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of the individual contributions of the anions and cations of the electrolytes. In general, if an electrode on dissociation gives new positive cations and new negative anions, then its limiting molar conductivity equal to lambda not equal to nu plus lambda not plus nu negative lambda not negative. आप ये जानते होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब डिसोसिएट्स होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बनाते हैं, तो उनके कैटायंस और एनायंस का जो सम होता है वह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होता है. यही आपका कोहलाउस लॉ है. ठीक है. हियर लैम्डा पॉजिटिव एंड लैम्डा नेगेटिव आर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस रेस्पेक्टिवली. ओके students, now we discuss the application of Kohlrausch law. What is the application of Kohlrausch law? The first application, that calculation of molar conductivities of weak electrolyte at infinite dilution. आपको पहले बताया गया कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं. जैसे हम एसिटिक एसिड की अगर स्टूडेंट्स बात करें तो एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ये डिसोसिएट्स होकर के CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव बनाएगा. अब लैम्बडा एसिटिक एसिड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्बडा नॉट, चूँकि दो आयन बन रहा है, एक आपका एसीटेट आयन एक हाइड्रोजन आयन, तो लैम्बडा एसीटेट आयन और लैम्बडा हाइड्रोजन आयन के इक्वल होगा. अब आप जानते होंगे इसमें हम कोई सॉल्ट मिलाएंगे तो सॉल्ट मान लीजिए हम NaCl मिलाएंगे. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट जो सॉल्ट हम मिलाते हैं उतना सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि आप इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होगा कि किसी भी अगर सम में
अगर हम कोई डिजिट ऐड कर रहे हैं तो जितना ऐड करते हैं उतना सब्सट्रैक्ट कर दें तो होल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव ऐड किए तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमने सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को एक साथ ले लीजिए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ करके कॉमन माइनस ले लीजिए। तो अब ये अगर ऐड करेंगे तो जो लैम्बडा था ये लैम्बडा नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। लैम्बडा नॉट ऐड करेंगे CH3COONA पॉजिटिव, ये हो जाएगा लैम्बडा नॉट HCl एंड दिस इज द लैम्बडा नॉट NaCl। तो अगर आपको इन सबकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो आप इसके हेल्प पर लैम्बडा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ Kohlau's law. Now we discuss the second application of the Kohlau's law, that is the determination of degree of dissociation of weak electrolyte. The second is the determination of degree of dissociation of weak electrolytes. स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? अल्फ़ा। अल्फ़ा इक्वल टू होता है लैम्बडा डिवाइडेड बाय लैम्बडा नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो अगर हमें लैम्बडा और लैम्बडा नॉट की वैल्यू पता हो तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी के ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपने पढ़ा है पहले भी, इसके पहले सॉल्यूशन चैप्टर में, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू होता है C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारी इक्वेशन 1 है। और अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि अल्फ़ा इक्वल टू होता है लैम्बडा बाई लैम्बडा नॉट। तो अगर इस अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में हम पुटअप कर दें तो ये हमने पुटअप किया, इसका स्क्वायर किया, ये आपका इसमें से LCM लेके सब्सट्रैक्ट किया, तो ये आपका, ये देखिए इसकी 1 पावर इसकी 1 पावर से डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ केवल लैम्बडा नॉट बचेगा और ये ऊपर ऐसे हुआ, ये आपका यहाँ बच जाएगा दिस। ठीक है, तो इस सारी वैल्यू को पुटअप करके हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एंड अगला स्टूडेंट्स एप्लीकेशन है द फोर्थ, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली soluble salts. The fourth D application, that is determination of solubility of sprangly soluble salts. अभी आपको पीछे ही पढ़ाया गया था कि लैम्बडा नॉट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, एक्चुअली नॉट लैम्बडा नॉट, दिस इज द लैम्बडा, ओके, दिस लैम्बडा इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, या कप्पा डिवाइडेड मल्टीप्लाई 1000 बाई सॉल्युबिलिटी, या अगर हमें सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है तो यह आ जाएगा, यहाँ आ गया, यानी हो जाएगा डिवाइडेड बाई लैम्बडा। यू नो दैट लैम्बडा इज द मोलर कंडक्टिविटी। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई लैम्बडा। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको पहले भी पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि जब किसी भी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी करंट या इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो वो जो है अपने आयंस में डिसोसिएट्स हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो यानी द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आयन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर फ्यूज्ड स्टेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी जब हम किसी सॉल्यूशन या फ्यूज्ड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट्स हो जाता है और इसी को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज गवर्नड बाय अ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है ये फैराडे के लॉ से गवर्नड होती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज गवर्नड बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, अब फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फैराडे लॉ क्या है? अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रोड्स लेते हैं तो इलेक्ट्रोड्स पर या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा आयनाइजेशन के बाद या तो वहाँ पर से लिबरेट होगा। तो द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड
is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte. यानी जितना ज़्यादा आप चार्ज पास आउट करोगे इलेक्ट्रोड पर उतना ही ज़्यादा सब्सटेंस कलेक्ट होगा या डिपॉजिट होगा या उतना ही लिबरेट होगा. ठीक है, यानी द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस deposited or liberate at the electrode is directly proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte. ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट पर W ग्राम कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है और Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है, तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा Q, या W इक्वल टू जेड क्यू, या W इक्वल टू जेड. आप जानते होंगे Q इंटू आई इंटू टी होता है, तो Q के प्लेस पे हम आई टी रख देंगे तो हो जाएगा W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी. ओके, Z क्या है, वेयर Z इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड. अब अगर हम स्टूडेंट्स Z को डिफाइन करना चाहते हैं, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि W इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी होता है. अगर I 1 एम्पियर हो और T 1 सेकेंड हो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z हो गया. इसका मतलब क्या हुआ कि द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटिंग बाई पासिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 सेकेंड are passing 1 coulomb of charge through the electrolytes. यानी अगर 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रोड के थ्रू पास किया जाए तो किसी भी सब्सटेंस पर जो कलेक्ट मास होगा वह उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या होगा, इक्वल होगा. ठीक, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. अब हमें देखना है इक्विवेलेंट मास क्या होता है. तो एक्चुअली स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट मास जो होता है कि द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटिंग बाय पासिंग 96500 कूलम ऑफ चार्ज. आप जानते होंगे 96500 जो होता है वो एवोगाड्रो क्या कहते हैं उसका 96500 जो है फैराडे कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 96500. तो यानी द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिट बाय पासिंग 96500 कूलम ऑफ अ चार्ज. यानी 96500 कूलम चार्ज अगर हम पास आउट करते हैं तो जितना मास ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट होता है उसी को हम इक्विवेलेंट क्या कहेंगे, मास कहेंगे. ठीक, अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. यानी फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट. मानिए दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं और दोनों में सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी पास आउट किया जाए तो द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दियर इक्विवेलेंट मास. हमने कहा कि अगर सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में पास किया जाए तो उनके जो डिफरेंट मास जो है डिपॉजिट होंगे वह इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, यानी व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर इक्विवेलेंट मास. मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2. ओके, अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. नीचे आपका एक क्वेश्चन दिया गया, कंसीडर द रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14 H आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर मॉलिक्यूल. करा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7. देखिए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड होती है वो कूलम के इक्वल होती है, सॉरी वो फैराडे कांस्टेंट के इक्वल होती है. तो हमेशा याद रखिएगा जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है उतना फैराडे इलेक्ट्रिसिटी नीड होती है. तो इस क्वेश्चन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 6. इसका मतलब जो हमें एनर्जी नीड हो, जो इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी कितनी होगी, 6 फैराडे. तो यानी 1 मोल ऑफ Cr2O7 आयन रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू कूलम 6 फैराडे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए 6 फैराडे.
और फैराडे की वैल्यू होती कितनी है 96500, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 579000 कूलोम। ओके, अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया, पहला क्या दिया है कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, दूसरा 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव टू Cu, एंड थर्ड है 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, MnO4 1 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पहला देखिए करा कि Al3 पॉजिटिव Al में कन्वर्ट हो रहा है, तो Al3 पॉजिटिव Al में कब कन्वर्ट होगा, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से कट जाएगा तो ये आपका 0 बचेगा, इसका मतलब Al में कन्वर्ट हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3, इसका मतलब 3 फैराडे हो जाएगा। तो द क्वांटिटी ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन 1 मोल ऑफ Al3 इज 3F, तो 3F मतलब 3 इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको बताया गया, मल्टीप्लाई कर लो, जितना है उतना कूलम हो गया। अब यहाँ देखिए सेकंड में दिया था Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2, चूँकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव करेगा तभी 0 बचेगा, तो यहाँ 2 फैराडे हो जाएगा, तो 2 फैराडे मतलब आपने मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अगला आपका है MnO4 1 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव। तो अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर Mn है, Mn पर चार्ज यहाँ आपको नहीं पता है तो पहले निकाल लो। कैसे निकालोगे, आपको क्लास 11 बताया गया ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, जिसका निकालना होता है उसका x मान लो। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव होता है तो 4 माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पर -1 चार्ज गिवन इसलिए -1, तो 4 2 जा 8 माइनस वेट इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 7। तो यहाँ Mn पर +7 चार्ज है और यहाँ Mn पर कितना हो गया 2, तो 7 से 2 जाने में कितनी की चेंजिंग हो रही है 5 की चेंजिंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn चेंजेज +7 टू +2, यानी +7 से +2 हो रही है, आपको हमने बताया ही। तो सो द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर, कितना डिफरेंस है 7 और 2 में 5 का, तो 5 फैराडे हो गया। तो 5 फैराडे मतलब 5 फैराडे की वैल्यू आप जानते हैं, मल्टीप्लाई करो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 hours, देन हाउ मेनी electrons flow through the wire. Listen once again. If a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow through the wire? स्टूडेंट्स I की वैल्यू आपको गिवन है 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर, T की वैल्यू 2 और दिया, इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो R को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 R को हमने 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स, ये 2 R 20 R नहीं, दिस इज द 2 R। ओके, ये 2 R है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, सेकंड में आ जाएगा। अब अगर आप इसमें Q निकालेंगे तो आप जानते हैं कि Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो I की वैल्यू क्या है 0.5 और T की वैल्यू ऊपर आपने फाइंड कर लिया 2 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, तो अगर 2 इंटू 60 यहाँ पर वैल्यू है 2, चूँकि 2 सेकेंड आपको दिया इसलिए आप यहाँ 2 आप यूज़ करोगे, तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 यानी 1 हो गया, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3600 कूलम हो गया। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना आपका एवोगाड्रो वैल्यू होती है उतना डिवाइडेड बाय जितना फैराडे वैल्यू होती है, और उसमें जितना चार्ज होता है उतने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एवोगाड्रो वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻33, फैराडे कांस्टेंट 96500, और ये आपकी आ गई 3600, तो 2020 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी डिवाइड कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी और 965 से डिवाइड कर लेंगे, तो द आंसर विल बी 2.246 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट्स। ओके, now students we discuss the next question. This is the question, how much electricity in the term of Faraday is required to produce. How much electricity is in the term of Faraday is required to produce, कितनी प्रोड्यूस होगी। पहला आपको दिया 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम टू मोल्टेन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और अगला है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टेन Al2O3। तो स्टूडेंट्स देखिए CaCl2 लिखा गया है, इसका मतलब Ca पर कितना चार्ज है 2, तो Ca2 चार्ज यहाँ Ca में कन्वर्ट हो रहा है, तो Ca2 चार्ज Ca में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया स्टूडेंट्स गेन किया। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी रिक्वायर होगी, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड का मतलब आपको यहाँ 20 ग्राम क्वेश्चन में दिया है,
ये क्वेश्चन में 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास स्टूडेंट्स कितना होता है 40 इंटू कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 फैराडे आ गया, और 1 फैराडे की वैल्यू 96500 होती है। अब अगर यहाँ देखा जाए Al2O3, इसका मतलब Al पर कितना चार्ज है 3, तो 3 पॉजिटिव यहाँ Al में कन्वर्ट हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो आपका हो जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3, तो 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 27। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 27, और इसका मास कितना दिया 40 ग्राम, तो इंटू 40 हो गया, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 4.44 क्या आ जाएगा फैराडे। ठीक। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन। पहला 1 मोल ऑफ H2O 2O2, दूसरा 1 मोल ऑफ FeO 2FeO3। देखिए H2O अगर डिसोसिएट्स होगा तो ये आपका जानते हैं O2 का रहा, तो इसका मतलब यह चायन और O2 बचेगा, तो O2 यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2 रख दिया गया, और यहाँ ऑक्सीजन 1 इसलिए हमने हाफ O2 रख दिया, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड 2F हो गया, 2 की इलेक्ट्रॉन है 2F हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर लिया गया। ठीक है। दूसरा आपका दिया है FeO जो है Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो देखिए यहाँ Fe2 है इसलिए हमने 2 रख दिया, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, तो देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ और हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यहाँ बचेगा, 2 and 1 3 हो गया, तो 2Fe2 जो है 2Fe3 में कन्वर्ट हुआ है, चूँकि यहाँ पर 2 चार्ज है यहाँ 3, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 6 में से 4 निकालेंगे कितना स्टूडेंट हो जाएगा 2, यानी 2 मोल अवर FeO रिक्वायर्ड होगा 2 फैराडे होगा, और 2 फैराडे अगर निकालना है तो 2 फैराडे मतलब ये वैल्यू हुई। अब अगर इसमें 1 मोल का, चूँकि ये तो कितने मोल्स का हुआ 2 मोल का, बट क्वेश्चन में कितने मोल का पूछा 1 मोल का, तो 1 मोल का निकालेंगे तो इसमें इसका हाफ हो जाएगा, यानी 95600 कूलम हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन है कि अ सॉल्यूशन ऑफ निकिल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, व्हाट मास ऑफ द निकिल विल बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। एटॉमिक मास ऑफ निकिल आपको गिवन है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम Q निकालेंगे, Q इक्वल टू I इंटू T होता है। अब देखिए NiNO3 है, तो इसका मतलब Ni पर 2 पॉजिटिव है, तो Ni 2 पॉजिटिव अगर Ni में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 फैराडे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, तो 2 फैराडे डिपॉजिट निकिल, 2 फैराडे अगर डिपॉजिट होगा तो इसका एटॉमिक मास क्वेश्चन में कितना दिया 587 के, तो 1 फैराडे कितना हो जाएगा जितना है उतना डिवाइडेड बाई 2, इसलिए इस पर चार्ज कितना आपका आया है 6000, तो 6000 फैराडे, इसको डिवाइड कर लेंगे आपको हो गया 1.825 ग्राम। ओके, दिस इज द 1.825 ग्राम। ओके, तो इस बिहेव पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब हम स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर ऑल क्वेश्चंस, all of you try to solve this question self. At first you see this question from video, and after this you solve all these questions self, not you copy paste. Okay, so students maybe all of you try to understand all these questions. And students, one thing, all of you see daily the videos but not comment, so all of you comment also how you feel, means you understand all things or what's you want to improve in this video, and how you feel, because I want to help you, not I take from you something. हम आपसे कुछ मांगते नहीं, इसके बदले में हम ये चाहते हैं कि आपके पास नॉलेज गेन हो, आपके पास नॉलेज इंक्रीजमेंट हो। इसके लिए हम इतना ही आपसे चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप कमेंट भी करें, और वीडियो को देख करके आप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। अगर आप कोई भी टॉपिक समझ जा रहे हैं तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आप किसी चीज़ में प्रॉपर हो गए, आप किसी टॉपिक को प्रॉपरली समझ गए, आप अच्छे मार्क्स गेन कर गए। तो आप वीडियो देखिए, समझिए, और समझने के साथ साथ आप इसमें थोड़ा अपना प्यार, स्नेह भी दिखाइए, अफेक्शन भी दिखाइए कि आप वीडियो को सीन करते हो। आप सीन करने के बाद
को क्या समझ में आया, आप देखते हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, तो आप कमेंट करिए। और दूसरे जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उनके लिए प्रॉफिट होगा। जो आप एक्स्ट्रा मतलब अननेसेसरी चीज़ें देखने में अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, अगर इसको देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको निश्चित ही प्रॉफिट होगा, जो कि आपके लाइफ के लिए, आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, अगेन आई वांट टू विश अ हैप्पी होली एंड you enjoy this Holi very carefully. Okay, all of you take care, students. Bye bye, good afternoon.